Nicely gets it away. The flight and done beautifully. Oh, what a beauty. Launches this down the ground. That is a beautiful cricketing shot. Arafat Minhas. Is it over? And the wicket straight away. And that's out. Pulled him. It's through him. There it is. He's got the magic number. Looks to guide it and guides it fine. Through the leg side. پاکستان آسٹریلیا ون ڈے سیریز راولپنڈی میں پہلا میچ آسٹریلیا کا پاکستان کو 201 رنز کا ہدف میتھیو شاٹ اور میٹ رینشا کے نصف سینچریاں عرفات منہاس کے 32 رنز کے عوض 5 وکٹیں ابرار احمد کے 2 شکار جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری 13ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 49 رنز بنا لیے میچ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست Another one, maybe, yes. Oh, Arafat Minhas. Is it over? there it is. He's got the magic number. Becomes the first Pakistani male cricketer to pick up a 5 on debut. راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں عرفات منہاس کی شاندار بولنگ آسٹریلوی بلے بازوں کو گھما کر رکھ دیا ڈیبیو میچ میں عرفات منہاس کی 32 رنز کے عوض 5 وکٹیں ون ڈے ڈیبیو پر 5 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بن گئے He's got the magic. Pakistan and the role that the field marshal and the prime minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there. امریکہ کا پاکستان پر ایک بار پھر اعتماد کا اظہار پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امن مذاکرات کے لیے شاندار کردار ادا کر رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ایک سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت طریقے سے جاری رہے ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی ایران اچھے طریقے سے جانتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے صدر ٹرمپ امریکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے معاہدہ کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل اجلاس بے نتیجہ ختم ایران معاہدے پر صدر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم اجلاس ختم ہونے کی تصدیق اجلاس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں امریکہ کے مفاد اور صدر ٹرمپ کی شرائط کے مطابق ہی ڈیل ممکن ہے وائٹ ہاؤس حکام ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری مذاکرات میں ابھی تک کوئی حتمی مفاہمت نہیں ہو سکی ایران جوہری معاملے پر بات کی بجائے جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے ہم اپنے قومی مفادات کے بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی وزیر اعظم کی مرحوم صحافی الطاف حسن قریشی کے گھر آمد اہل خانہ سے تعزیت مرحوم کی بلندی درجات کی دعا وزیر اعظم نے الطاف حسن قریشی کی صحافتی خدمات کو سراہا مرحوم ایک اعلیٰ درجے کے انسان اور صحافی تھے مرحوم کی وفات سے صحافت میں ایک نا پر ہونے والا خلا پیدا ہو گیا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی سے لاہور میں امریکی کونسل جنرل کی ملاقات دو طرفہ تعلقات تجارت سرمایہ کاری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ سینتاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات پر تشویش کا اظہار پانی کو سیاسی دباؤ اور جبر کے لیے آلے کے طور پر استعمال کرنا علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے چیئرمین سینیٹ
सऊदी वजारत हज व उम्रा की बाद अज हज खितामा मिस कॉन्फ्रेंस। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की सरबराही में सेक्रेटरी मजहबी उमूर और डीजी हज की शिरकत। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की सऊदी हमनसब डॉक्टर तौफीक बिन रबिया और दीगर गैर मुल्की वफूद से मुलाकातें। आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी हज इंतजामात की भरपूर पजीराई। सऊदी वजीर हज व उम्रा का अगले हज इंतजामात फौरी शुरू करने का इंदिया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स हमारे हीरोज, शहरियों की ईद खुशगवार बनाने में पेश ईद के दिनों में सुथरा पंजाब की टीम ने इंतहाई जाफिशानी से काम किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना रहा। शहरी बेहतरीन सफाई इंतजामात पर वजीर आला मरीम नवाज के मोतरफ हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक के हमरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान। पंजाब की 4000 सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया है। शहरियों को ताउन से बचाने के लिए अर्के गुलाब, फिनाइल और चूने का इस्तेमाल किया गया। ईद सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 कारकुनों ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। बलूचिस्तान की तरक्की का अहम संगमील गवादर एयरपोर्ट पर पहली आजमाइशी परवाज का कामयाब तजुर्बा। गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ एयर की पहली आजमाइशी परवाज की कामयाब लैंडिंग। गवादर एयरपोर्ट हुकाम और मुतालिका इदारों के नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। कामयाब लैंडिंग गवादर की फ़ज़ाई राबताकारी और तजुर्बाती तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग में अहम पेशरफ्त करार। गवादर एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना मुल्क की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अहम मुहर्रिक साबित होगा। बलूचिस्तान में सरगर्म भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से उनके अहले खाना भी लाताल्लुकी इख्तियार करने लगे। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज से उसके अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। हमारा खानदान पुरामन पाकिस्तानी है, कानून और रियासती इदारों का एहतराम करने आए हैं। शहनाज बलूच के अजीज़ व अकारिब का तुर्बत पुलिस प्रेस क्लब में बयान। ईद उल अज़हा के मौके पर गवादर पिस्नी में खुशियों के रंग बिखर गए। सकाफत, रिवायत और तफरीह का दिलकश इम्तिज़ाज। गवादर मेला सकाफती, तफरीही और अवामी सरगर्मियों का मरकज़। रवायती मौसीकी, मकामी खानों और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों ने शुरका को खूब महसूस किया। रंग स्टॉल्स, रवायती लिबास, मकामी जेवरात और दस्तकारी के शाहकार बलूचिस्तान की मुनफरिद सकाफत और सदियों पुरानी रिवायात के अक्कास। जर्मनी के शहर बर्लिन में आलमी सकाफती मेले में पाकिस्तानी रंगारंग सकाफत तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी फनकारों ने रवायती रक्स, रंगों और धुनों से खूब दाद वसूल की। फनकारों ने चारों सूबों की सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। कार्निवल ऑफ कल्चर्स में पाकिस्तान की 13 साल बाद वापसी एक अहम और काबिल जिक्र मौका है। इवेंट में दुनिया भर के 70 से ज्यादा ग्रुप्स ने अपनी सकाफतों की नुमाइंदगी की। बर्लिन में रवायती लिबास, मौसीकी और रक्स से पाकिस्तानी ग्रुप्स ने खूब पजीराई हासिल की। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के मजहबी हुकूक की मुसलसल पामाली। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक का गहरी तशवीश का इजहार। मुआशरे के लिए सबसे ख़तरनाक और परेशान कुन चीज़ गैर मामूली वाक़यात का तवातर के साथ पेश आना है। भारत हमारी मजहबी, सकाफती और तारीखी शनाख्त ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। मीरवाइज राजौरी में ऑपरेशन में मुसलसल 8वें रोज़ भी जारी और तशद्दुद ऑपरेशन की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार। श्रीनगर में मजीद 2 कश्मीरियों के अमलाक जब्त। मोदी की नाकिस माशी पॉलिसियों से भारतीय मईशत शदीद दबाव का शिकार। माशी तरक्की का मन घड़त बयानिया बेनकाब। $4 ट्रिलियन की माशी ताकत के दावेदार भारत को इलाकाई जंग ने शदीद बहरान की दलदल में धकेल दिया। मोदी हुकूमत ने मईशत की मौजूदा संगीन सूरत हाल का मलबा ईरान जंग और आबनाए हुर्मस की बंदिश पर डाल दिया। मोदी ने बदहाल सनत, तिजारती खसारे और तकनीकी तनज़्ज़ुली के बाद माशी बहरान का बोझ भारतीय मजदूर तबके पर मुंतकिल कर दिया। भारतीय जरीदा फ्रंटलाइन की रिपोर्ट। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालहाना मोहब्बत का इजहार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
کاغذ لہرا کر پاکستانی عسکری قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ افغانستان کے بدتر حالات کے ذمہ دار افغان طالبان ہیں۔ طالبان رجیم نے فتنہ الخارج کو افغانستان میں محفوظ پناہگاہیں فراہم کر رکھی ہیں۔ طالبان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کریں کیونکہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں۔ افغان شہری افغان طالبان رجیم کے ہاتھوں انصاف کا قتل، عدالتیں یرغمال، ملک بھر میں بندوق کا قانون نافذ۔ طالبان رجیم نے آئین، عدالت اور انسانی حقوق کو روند کر ملک پر بدترین آمریت مسلط کر دی۔ نام نہاد عدالتیں خود ہی فوجداری مقدمات کی تحقیقات کر کے فیصلے سناتی ہیں۔ طالبان نے اقتدار پر قبضے کے بعد تمام خواتین پروسیکیوٹرز کو برطرف کر دیا، دھمکیوں کا بھی سامنا۔ افغان جریدہ اٹلس پریس۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور یالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرمی کی شدت میں کمی سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ گڑی شاہو، مال روڈ، ایبٹ روڈ سمیت ملحقہ علاقوں میں سیاہ بادل چھا گئے۔ بادل برسنے اور تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نشتر ٹاؤن میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ضلع انتظامیہ اور واسا کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم۔ سندھ، مشرقی جنوبی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید گرم رہنے کا امکان۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ملتان 45، پشاور اور مظفرآباد میں 41 جبکہ اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع۔ چند مقامات پر تیز بارش اور یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ اور ٹینس گرینڈ سلیم فرینچ اوپن ایک اور بڑا اپسیٹ، یعنی سنت کے بعد ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم فاتح سربیا کے نوواک جوکووچ بھی ایونٹ سے باہر۔ برازیل کے جواؤ فونیس کا سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 سیٹس میں شکست کھا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں کپاس کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران امریکہ امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ سنگاپور میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ پیٹ ہیگزت کا مزید کہنا تھا کہ عالمی سلامتی کے لیے امریکہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی قیادت میں وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے تک اہم اجلاس جاری رہا۔
اخبار کے مطابق ایران معاہدے پر صدر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہو گیا اور اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی سچویشن روم اجلاس ختم ہونے کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ حکام کے مطابق ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے مفاد اور صدر ٹرمپ کے شرائط کے مطابق ہی ایران ڈیل ممکن ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف معروف صحافی الطاف حسن قریشی مرحوم کے گھر آئے۔ وزیر اعظم نے مرحوم الطاف حسن قریشی کے بیٹے کامران حسن قریشی اور بیٹی کرتبہ مظہر سے تعزیت کی اور مرحوم کے بلندی درجات کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے الطاف حسن قریشی کی صحافتی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مرحوم ایک اعلیٰ درجے کے انسان اور صحافی تھے۔ مرحوم کی وفات سے صحافت میں ایک کبھی نہ پر ہونے والا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی مودی سرکار کی مہم بری طرح ناکام ہو گئی۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کی تہلکہ خیز رپورٹ نے نئی دلی کے پروپیگنڈے کا پول کھول کر رکھ دیا۔ مریم ملک رپورٹ کریں گے۔ 2016 میں پاکستان کو دنیا سے کاٹ دینے کا مودی کا دعویٰ خاک میں مل گیا۔ عالمی سطح پر تنہا کرنے کی 10 سالہ بھارتی مہم کا دباؤ خود نئی دہلی پر الٹ گیا۔ عالمی نشریاتی ادارے الجزیرہ نے اپنی خصوصی رپورٹ مودی ڈپلومیسی کی ناکامی کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق 2025 کی پاک بھارت کشیدگی اور پہلگام واقعے پر نئی دہلی کا پاکستان مخالف بیانیہ عالمی دارالحکومتوں نے بغیر ثبوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان نے نہ صرف عالمی بیانیے کی جنگ جیتی بلکہ خطے کا وہ ناگزیر کھلاڑی بن کر ابھرا جس کے رابطے واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض سے بیک وقت جڑے ہیں۔ سفارتی محاذ پر اصل دھچکا تب لگا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 30 سے زائد مرتبہ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیا اور نئی دہلی تردید کرتا رہ گیا۔ اسی تناؤ کے دوران بھارت جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پر تنقید کرتا رہا، وہیں صدر ٹرمپ نے انہیں غیر معمولی شخصیت قرار دے کر نئی دہلی کو سکتے میں ڈال دیا۔ رپورٹ کے مطابق خطے کی نئی جیوپولیٹیکل حقیقتیں بھارت کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ چین کے ساتھ ناقابل شکست شراکت داری، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں تاریخی بہتری اور خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون نے پاکستان کی فضائی اور عسکری طاقت کا لوہا منوا لیا ہے۔ دوسری طرف مودی سرکار کی مسلم مخالف پالیسی نے بھارت کی رہی صحیح بین الاقوامی ساکھ کو بھی ملیا میٹ کر دیا۔ پاکستان نے امریکی پالیسی سازوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ ماہرین تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان آج دنیا کے ان گنے چنے ممالک میں شامل ہے جو متضاد مفادات کے باوجود امریکہ، چین، ایران اور سعودی عرب کے ساتھ بیک وقت مؤثر تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ مودی سرکار کا جارحانہ پروپیگنڈا پاکستان کے مضبوط دفاع اور نپی تلی سفارتکاری کے آگے ڈھیر ہو چکا ہے۔ پاکستان آج تنہا نہیں بلکہ خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا ایک ناگزیر پاور ہاؤس بن کر کھڑا ہے۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بھارتی گودی میڈیا نے ایک بار پھر پاکستان کو متنازع بیانیے سے جوڑنے کی ناکام کوشش شروع کر دی ہے۔ گودی میڈیا اب نام نہاد کالعدم تنظیموں کا نام لے کر پاکستانی سفارتی اور دفاعی معاہدوں کو اسرائیل سے جوڑنے کا من گھڑت پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے سعید وزیر۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے صحافتی اصولوں کو پامال کرنے کا یہ سلسلہ نیا نہیں ہے۔ حال ہی میں بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور صحافیوں کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے علاقہ راجوری میں بھارتی فوج کے جوانوں کی ہلاکت سے متعلق ایک اور من گڑت پروپیگنڈا کیا گیا اور بغیر کسی ثبوت کے اس واقعے کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ صرف یہی نہیں، گودی میڈیا نے جلندھر میں ملٹری کیمپ کے باہر دھماکے کا الزام بھی بغیر کسی تحقیقات اور شواہد کے پاکستان پر در دیا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ بھارتی میڈیا نے پاکستان پر کرکٹ اور میچ فکسنگ سے حاصل رقم کو کینیڈا میں بھارت مخالف سرگرمیوں میں استعمال کرنے کا مضحکہ خیز الزام بھی لگا دیا۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت کے زیر اثر بھارتی میڈیا مسلسل بے بنیاد الزامات کے ذریعے پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں مصروف ہیں۔ گودی میڈیا ابراہم معاہدے سے متعلق بے بنیاد بیانیہ گڑھ کر پاکستان پر دباؤ ڈالنے اور عالمی ساکھ متاثر کرنے کی مذموم سازش کر رہا ہے۔ توانائی بحران اور دیگر داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن اور پاکستان پر الزام تراشی بی جے پی حکومت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ بھارتی میڈیا کا یہ انتہا پسندانہ طرز رپورٹنگ صحافتی اصولوں کے بجائے خالصتاً سیاسی پروپیگنڈے کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد صرف حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ بلوچستان میں سرگرم بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں سے ان کے اہل خانہ بھی لاتعلقی اختیار کرنے لگے ہیں۔ تربت سے تعلق رکھنے والی فتنۃ الہندوستان کی دہشت گرد شہناز سے اس کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں نے مکمل لاتعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔
तुर्बत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहनाज की वालिदा रुखसाना, दादा और मामू ने बताया कि शहनाज कम उम्र में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी और गुज़श्ता तकरीबन 12 बरस से खानदान का इसके साथ कोई राबता नहीं है। उन्होंने कहा कि शहनाज के वालिद उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 9 माह की थी। वालदा का मजीद कहना था कि खानदान को कभी भी इसकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या किसी कलदम तंजीम से रवाबित के हवाले से मालूमात नहीं थी। عمود 2 سال نندوکی مسکتا 2 چوکی پیدا کتا مودا شهنازا منی کرا ایلو لیزک غاب چیز نکتا او شهنازا منا واسطا نیستی منی براتی آون براتی بالا چی اسلامی پیروکنتی منی درستی براتا شهنازا واسطا نیستی او منی برازت کا منی کاندانا قصا واسطا نی او من برات مستری کیومی اکبری کیومی چوکا کاستا منی براتا پیملیا منی براتا پنچی براتا شا کاستا واسطا نیستی کسی اوما آلی والی نکتا و 12 سالی مسعود کتا آشوکا میکرا چشنگا قبری چیزی نکتا۔ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद शहनाज के चचा और दीगर रिश्तेदारों ने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमारे खानदान का इससे किसी कोल फेल या सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम और हमारा खानदान पुरअमन पाकिस्तानी हैं और हम हमेशा कानून और रियासती इदारों का एहतराम करते आए हैं। फेडरल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज के अहल खाना और रिश्तेदारों का ये एलानिया इजहार लाताल्लुकी इस बात को जाहिर करता है कि बलोच कौम अब दहशतगर्दी के नासूर से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुकी है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी हुकूक की मुसलसल पामाली पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारत हमारी मजहबी, सकाफती और तारीखी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीर वाइज उमर फारूक ने श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इस मरतबा भी ईदगाह श्रीनगर और जामिया मस्जिद में नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई, जो इंतहाई तकलीफ से है। उन्होंने कहा कि किसी भी माशरे के लिए सबसे खतरनाक और परेशान कुन चीज़ गैर मामूली वाक़यात का तवातुर के साथ पेश आना है। मीर वाइज ने इलाके की मुंतखब शुदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसका बुनियादी फर्ज है कि वो मजहबी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। मीर वाइज ने कहा कि यह हमारे वजूद और बका का मामला है, लिहाजा हम सबको इस पर संजीदगी से गौर फिक्र करना होगा। भारतीय फोर्सेज की तरफ से जिला राजौरी के इलाकों डोरेमल और गंभीर मोकलान में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई आज मुसलसल 8वें रोज़ भी जारी रही। ऑपरेशन में मजीद तेजी लाते हुए पैरा कमांडोज की ताज़ा कुमक मंगवा ली गई। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर, ड्रोन कैमरे और सुराग रसां कुत्ते भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारतीय हुकाम दावा कर रहे हैं कि इलाके में मुतादिद अस्करियत पसंद मौजूद हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से ज़ायद अरसे से जारी इस पुरतशद्दुद ऑपरेशन की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और मुसलसल खौफ व दहशत के माहौल में जी रहे हैं। काबिज़ इंतज़ामिया ने श्रीनगर में मजीद 2 शहरियों की गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली हैं। अफगान तालिबान रजीम के हाथों इंसाफ का कत्ल, अदालतें यरगमाल, मुल्क में बंदूक का कानून नाफिज हो गया। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम ने आइन, अदालत और इंसानी हकूक को रौंद कर मुल्क पर बदतरीन आमरीत मुसल्लत कर दी है। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से इस्लाम की गुमराह कुन तशरीह और मनमाने फैसलों पर दुनिया भर से कड़ी तनकीद हो रही है। अफगान जरीदे अटलस प्रेस के मुताबिक अफगानिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल फरीद हामिदी ने कहा है कि तालिबान रजीम ने अदालती और कानूनी इदारों में इख्तियारात की अलहदगी ख़त्म करके कानूनी निज़ाम की बुनियाद को, तसव्वुर को ही तबाह कर दिया है। अफगान तालिबान रजीम की नाम नहाद अदालतें खुद ही फौजदारी मुकदमात की तहकीकात करके फ़ैसला सुना देती हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना था कि तालिबान ने इक़्तिदार पर कब्जे के बाद तमाम ख़वातीन प्रोसिक्यूटर को बरतरफ कर दिया और अब उन्हें धमकियों का भी सामना है। अफगान तालिबान रजीम में कैद ख़वातीन की तादाद बढ़कर 1825 तक पहुँच गई है। तालिबान के इक़्तिदार के बाद कम से कम 57 प्रोसिक्यूटर्स या उनके अहले खाना कत्ल किए जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम ने कानून, इंसाफ और इंसानी हकूक़ का गला घोंट कर अदालती निज़ाम को ज़ाती इक़्तिदार का हथियार बना लिया है। अफगान तालिबान रजीम के ज़ालिमाना फ़ैसलों ने अफगानिस्तान को कानून की हुक्मरानी के बजाय खौफ, जबर और इंतकाम पर कायम रियासत में तब्दील कर दिया है। और काबुल में अफगान शहरी ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफगान शहरी ने अफगानिस्तान के बदतर हालात का जिम्मेदार अफगान तालिबान रजीम को करार दिया। वायरल वीडियो में अफगान शहरी का कहना था कि ईद का त्यौहार है, मगर लगता नहीं कि यहाँ अफगानिस्तान में कोई ईद है। अफगान शहरी भूख व अफलास का शिकार और बॉर्डर्स भी बंद हैं। अफगानिस्तान के शहरियों को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। फितनतुल खवारिज को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें देने पर अफगान शहरी ने तालिबान रजीम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। अफगान शहरी ने काबुल से कागज़ लहराकर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया।
मक्का मुकर्रमा में अकीदत और एहतराम से भरपूर एक पुरवकार तकरीब में खाना काबा का नया गिलाफ बैतुल्लाह के कलीद बरदारों के हवाले कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा के नायब अमीर शहजादा सऊद बिन मशल ने खादमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत में ये अजीम एजाज़ अंजाम दिया। तकरीब में हज उमरा के वज़ीर तौफीक रबी और बैतुल्लाह के चीफ कलीद बरदार अब्दुल मालिक अशेबी ने हवालगी के दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए, जिसके साथ ही यकम मुहर्रम 1448 हिजरी को गिलाफ काबा की तब्दीली के सालाना अमल का बाकायदा आगाज़ हो गया है। नया गिलाफ किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में नहायत महारत और नफासत से तैयार किया गया है। स्याह कुदरती रेशम से बने गिलाफ पर सुनहरी और चांदी के धागों से कुरानी आयात और इस्लामी नकूश कशीदा है। 14 मीटर बुलंद गिलाफ के ऊपर वाले हिस्से में 95 सेंटीमीटर चौड़ी और 47 मीटर तवील पट्टी नस्ब है, जो 16 खूबसूरत इस्लामी नक्शो नगार से मुज़य्यन टुकड़ों पर मुश्तमिल है। हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली का ये रूहानी और तारीखी अमल दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अक़ीदत, महब्बत और तक़द्दुस की अलामत समझा जाता है। गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ ईयर की पहली आजमाइशी परवाज़ कामयाबी के साथ लैंड कर गई। गवादर एयरपोर्ट के हुक्काम और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने परवाज़ का इस्तकबाल किया। ये कामयाब लैंडिंग गवादर की फ़ज़ाई राब्ताकारी और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है, जबकि इस आजमाइशी परवाज़ के बाद गवादर में मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ के बाकायदा आगाज़ की राह हमवार होगी। गवादर एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक साबित होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली परवाज़ की कामयाब लैंडिंग बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए खुशाइंद पेशरफ्त है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस नई फ़ज़ाई सहूलत से गवादर के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बेहतर अंदाज में मुंसलिक किया जा सकेगा, जिससे आवाम को आसान सफरी सहूलतें मुयसर आएंगी और सरमायाकारी के नए मौक़े और तजारती सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान की माशी तरक्की और इलाकाई रवाबित का मरकज़ अब गवादर बन रहा है, जबकि बेहतर फ़ज़ाई राबते, सयाहत, कारोबार और मकामी मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान को 201 रन का हदफ दिया है। जवाब में कौमी टीम की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान ने 21वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 83 रन बना लिए हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 44.1 ओवर्स में 200 रन बनाकर आउट हो गई। मैथ्यू शॉट और मैट रेंशा ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मैथ्यू शॉट ने 55 रन स्कोर किए। मैट रेंशा 61 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। एलेक्स कैरी 19, कप्तान जॉश इंग्लिस 13 और मैथ्यू कॉनिमन 24 रन बना सके। दीगर कोई बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सका। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यूटेंट इरफात मिन्हास ने शानदार बॉलिंग की और सिर्फ 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अबरार अहमद ने 2, जबकि शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान आगा ने एक विकेट हासिल की। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। अरफात मिन्हास वनडे डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अरफात मिन्हास ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को घुमा के रख दिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर अरफात मिन्हास ने अपने पहले ही एक रोज़ा मैच में 32 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अरफात मिन्हास ने मैथ्यू शॉट, कप्तान जॉश इंग्लिस, मार्नस लबुशेन, कैमरो ग्रीन और नेथन एलिस की विकेटें हासिल करके ये कारनामा सरअंजाम दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया। क्रिकेट फैंस का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस रावलपिंडी में देखना चाहते हैं। तफसील जानते हैं ज़ीशान कयूम से। 32 साल के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैच की मेज़बानी की। इस मैच को देखने के लिए शायकीन ने बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख किया। शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख लेंगे पिंडी का तो माशाल्लाह ऐसा क्राउड है कि आपके सामने के बिल्कुल हाउसफुल है, बिल्कुल टिकट नहीं मिली, 3-4 दिन पहले से सोल्ड आउट हो गई थी। और ऑस्ट्रेलिया माशाल्लाह हमारे पास ये तीसरी चौथी दफ़ा आ चुकी है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से टीमें आएँ, हमें देखें। उन्होंने देखा होगा कि किस तरह हमारी
जो फोर्सेस हैं उन्होंने उनको प्रोटोकॉल दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को वेलकम करेंगे, वो कहेंगे कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और हमारे मुल्क की जो सबसे खूबसूरती है वो हमारी मेहमान नवाजी है, जिस पर हमें फ़ख्र है। हम तो स्पेशली थैंक्स है जी बाबर आजम का, ये बाबर आजम की वजह से टीम आई हुई है। ये मेरा बेटा बाबर आजम का फ़ैन है और हम बाबर आजम के लिए आए हैं। तो मैं सिंध से आया हूँ खास बाबर आजम के लिए, मैं बाबर आजम का बिग फैन हूँ। काफ़ी शायकीन आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने जितना जोश देखा भी रास्ते में तो लोगों का जोश काफ़ी पीक में था, लोग बड़े शौक से आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कंटिन्यू है। मेरा जो सबसे फेवरेट प्लेयर है वो बाबर आजम है और मैं इतने दूर से सिर्फ बाबर आजम को देखने के यहाँ पर आया हूँ। हम काफ़ी खुश हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, वो खेलें, अच्छा खेलें, वो बार बार आए हमारे मुल्क में और हम ज़्यादा क्रिकेट एंजॉय करें यहाँ पे आके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले एक रोज़ा मैच से कबल मेहमान टीम की मैनेजर ने पाकिस्तानी टीम से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की मैनेजर कैथरीन वाइटमैन पाकिस्तानी टीम की ड्रेसिंग रूम में आई। कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कैथरीन वाइट का इस्तकबाल किया, पाकिस्तानी स्क्वाड को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ऑस्ट्रेलवी टीम मैनेजर ने कप्तान शाहीन शाह आफरीदी को मिठाई भी पेश की। खेलों की खबरों के बाद रुख करते हैं कुछ दीगर खबरों का। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं, सुथरा पंजाब के वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं जिनके जांफशानी और लगन ने शहरियों को ईद खुशगवार बना दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रही थी। तफसील जानते हैं वकास भट्टी से। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दफ्तर में सूबाई वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम वजीर आला मरियम नवाज के दिल के करीब है। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के दौरान सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया गया। पंजाब भर से 3,70,000 टन से ज्यादा लाशें टकाने लगाई गयी, जबकि ऑपरेशनल गाड़ियों ने अवामी खिदमत के लिए 60 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। पूरी पंजाब की टीम ने जिस तरह 3 दिन ईद के अपना फील्ड में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे और यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर मीडिया ने हमारी मुआवनत की और पूरी तरह से सुपरवाइज किया, एक टीम बनकर, मैं उनका फर्दन और कलेक्टिवली शुक्रिया अदा करती हूँ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सुथरा पंजाब के हर वर्कर्स को 10,000 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ग्रैंड ईद ऑपरेशन की निगरानी सुथरा पंजाब डिजिटल डैशबोर्ड्स के जरिए की गई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना रहा। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुल्तान में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। ऑपरेशन में हज़ारों कारकुनों और भारी मशीनरी ने दिन रात काम करते हुए हज़ारों टन आलाशें उठाकर ठिकाने लगाई। तफसील जानते हैं अली गुल से। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने 3 रोज में 3,60,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाईं। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल थीं। लाहौर से अटक तक और मुल्तान से रहीमर खान और सादकाबाद तक बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन जारी रहा। ये जो वर्कर्स हैं सुथरा पंजाब के हीरोज हैं, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 48-50 टेम्परेचर के अंदर काम करना तनख्वाह से नहीं हो सकता, ये जज्बे से हो सकता है। शहरियों को ताउफुन से बचाने के लिए अर्के गुलाब, फिनाइल और चूने का इस्तेमाल किया गया। हम मरियम नवाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने पंजाब सुथरा स्कीम निकाली है उसी तरह ही हमने पंजाब सुथरा स्कीम को पाया है और आज मुल्तान में बहुत अच्छा जो है सफाई का माहौल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब की वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए इनको 10-10 हज़ार रुपए नकद इनाम देने का भी ऐलान किया है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों की बदौलत पेट्रोल की कीमतें कम हुई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी की तरफ गामजन है। फैसलाबाद के सनतकारों ने सूरत हाल को मुल्क की माशी तरक्की के लिए खुशाइंद करार दिया है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की पॉलिसियों, पेट्रोल की कीमतों में कमी और खित्ते में अमन की मुस्बत कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हफ्ते के इख्तिताम पर 1,74,106 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर पहुंच गई। फैसलाबाद के सनतकार इसे खुशाइंद करार देते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की, मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन फैसला है और इससे एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। ये बड़ा खुश आइंद है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया ना पेट्रोल प्राइसेस कम का, उसका बड़ा इम्पैक्ट आया है। एक तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी आया है और इंडस्ट्रियल एक पॉजिटिव इमेज गया है। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों का तसलसल और आलमी सतह पर इसकी पजीराई पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के सफ़र को तेज़ तर बना रही है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद रगड़, PTV न्यूज़, फैसलाबाद।
بلوچستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کو حکومت کا عوام دوست قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ سے وقار احمد کی رپورٹ۔ بلوچستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 22 روپے کمی کے اعلان کو عوام حکومت کا عوام دوست قدم قرار دے رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز خوش ہیں کہ طویل سفری فاصلے اب مسئلہ نہیں، بزنس اب بہتر ہوگا۔ گورنمنٹ نے جو ریلیف دیا ہے پیٹرول کے، اس میں اچھا خوشائن بات ہے۔ اگر مزید اس میں کمی ہو تو اس سے مہنگائی میں بھی کمی ہوگی۔ اس سے جو ہے روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ بھی سستی ہو جائیں گی اور ٹرانسپورٹ کی جو کرائے ہیں ان میں بھی جو ہے کمی واقع ہوگی۔ 22 روپے کی یہ کمی کروڑوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی ہے، لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اگر بتدریج کم ہوتی رہیں تو مہنگائی کے جن کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا کوئی بڑا چیلنج نہیں ہوگا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ملک کو دہشت گردی، انتہا پسندی اور سائبر کرائم جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے پولیس افسران کو بھی جدید پولیسنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کے زیر اہتمام سندھ پولیس کے خصوصی تربیتی کورس مکمل کرنے والے ڈی ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب کی تفصیل ارسلان اسد سے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں سندھ پولیس کے خصوصی تربیت مکمل کرنے والے ڈی ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ بطور وزیر اعلیٰ ان کی اولین ذمہ داری عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ The most important lesson is the authority vested in a police officer must always be exercised with wisdom, fairness and compassion. The uniform you wear today is not merely a symbol of power, it is a symbol of public trust. وزیر اعلیٰ سندھ نے تربیت مکمل کرنے والے افسران پر زور دیا کہ وہ قانون کی عملداری کو یقینی بنائے، ہر ظلم اور ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے فرائض کی انجام دہی میں کسی ذاتی مفاد یا دباؤ کے خاتمے نہ لائیں۔ اس موقع پر کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی سعد بھروانہ نے کہا کہ کورس کے دوران افسران کو جدید تفتیشی طریقہ کار، جسمانی فٹنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں خصوصی تربیت فراہم کی گئی۔ بعد میں سندھ پولیس کے افسران نے مارچ پاس کیا اور مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ کو سلامی پیش کی۔ 6 ماہ کے خصوصی تربیتی کورس میں 43 افسران بشمول 9 لیڈی پولیس افسران نے شرکت کی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دوران تربیت نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران کو اعزازات عطا کیے۔ یہ پولیس افسران سندھ پولیس فورس میں شامل ہو کر جدید پولیسنگ کو بروئے کار لاتے ہوئے پیچیدہ جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں کپاس کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تعاون سے نیفٹیک لایا انٹرنیشنل لیول کے مفت کورسز۔ پاکستان کی خوشحالی آپ سے شروع ہوتی ہے، کل کی دنیا آپ کو بلا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان کے لیے ایک نیا راستہ۔ اے آئی فائنینشیل اینالسٹ with Power BI, AI for everyone, AI powered e-commerce, earning money through freelancing, AI augmented graphic design and video editing, AI augmented digital marketing and search engine optimization. ایسی سکلز جو آپ کو گروتھ، ارننگز اور سیلف ریلائنس دیتی ہیں۔ یہ صرف کورسز نہیں، پاکستان کے نوجوانوں کی ترقی کا مشن ہے۔ 20 مئی سے 5 جون 2026 تک پاکستان بھر میں رجسٹریشن کا عمل جاری۔ صرف 3 مہینے اور دنیا آپ کی اسکرین پر۔ اپنی پہچان بنائیں، پاکستان کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اسکلز آف ٹمارو، پاکستان کا ڈیجیٹل فیوچر۔ آن لائن داخلے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ نیفڈیک، درست ہر وقت بر وقت۔
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सदारत में डेरा इस्माइल खान में महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के हुक्काम का इजलास हुआ। गवर्नर ने गैस लोड शेडिंग पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सुबह और शाम के औकात में गैस की बिलातातुल फराहमी ज़रूरी है ताकि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात न हों। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी से डेरा इस्माइल खान के वाबदा हुक्काम ने भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। गवर्नर ने मुतालिका हुक्काम को ग्रिड स्टेशन के ज़रूरी सामान की जल्द फराहमी की हिदायत जारी की ताकि सार्फिन की मुश्किलात का अजाला हो सके। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। मारूफ शायर और नगमा निगार एसएम सादिक को 70,000 से ज़ायद गीत, सूफियाना कलाम और नाते लिखने का एजाज़ हासिल है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी मिलना इस अजीम शायर और तख्लीक़कार की सलाहियतों का एतराफ़ है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शकील मलिक। एसएम सादिक का शुमार मुल्क के उन बासलाहियत शायरों में होता है जिनके लिखे हुए गीतों की बाज़गश्त सिर्फ मुल्क के तूलो अर्ज में ही नहीं बल्कि सरहद पार भी सुनाई देती है। उनकी शायरी में मोहब्बत की कसक भी है और हिजर का दर्द भी, तसव्वुफ भी है और सूफियाना रंग भी। यही वजह है कि वतन अजीज का शायद ही कोई गुलकार हो जिन्होंने उनकी शायरी को सुरों का पैरहन न दिया हो। शेखुपुरा में पैदा होने वाले एसएम सादिक ने महज 15 बरस की उम्र में नुसरत फतेह अली खान के लिए गीत लिखा और देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। उथे अमलां ते होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी, मैं नई से नई बात करने का कायल हूँ। शायर वो होता है, राइटर वो होता है जो नई बात करे। मैं समझता हूँ कि मैंने चाहे जितने मर्जी सूफ़ी कलाम लिखे हैं, जितना मर्जी मैंने गाने लिखे हैं, लेकिन जो इज़्ज़त और जो मेरे अल्लाह ने मकाम मुझे नातों में दिया है, हालांकि नात लिखने का मैं एक पैसा नहीं लेता। नात कोई एसएम सादिक की शायरी के जेवर का नगीना है। उनका नातिया कलाम सरवर कायनात से इजहार मोहब्बत और अकीदत का वसीला बनकर उनके फिक्र फन का महवर बन चुका है। एक ख्वाब सुनावा पुरनूर फिजावा आका दा मुहल्ला जिमे अर्श मुअल्ला। एसएम सादिक के लिखे हुए गीत हर अहद और हर उम्र के अफराद में यकसा मकबूल हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनके लिए सिविल अवार्ड एक एजाज़ है, ताहम उनके लिए असल अवार्ड उनके करोड़ों मद्दाहों का प्यार है जिनके दिलों में वो बसते हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद उल अज़हा गुजरने के साथ ही शहर पेशावर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। बाज़ारों में ख़रीदारों की आमद बढ़ गई है, जबकि सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ भी खुल चुके हैं। हमजा ज़मान की रिपोर्ट। ईद की तातीलात के बाद शहरी दोबारा अपने रोज़मर्रा मामूलात की जानिब लौट रहे हैं। काम का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है, मगर लोगों के दिल अब भी ईद की रौनकों, ख़ानदानी मुलाकातों और खुशियों भरी यादों के साथ जुड़े हुए हैं। ईद के बाइस घरों और सियाहती मकामात का रुख करने वाले शहरी अब अपने रोज़गार, तालीम और दिगर मसरूफियात की जानिब लौट रहे हैं। ईद के हमारे 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं। हमारे आपस में जो है गेट टुगेदरिंग रही है और पकवान भी अच्छे अच्छे बनते रहे हैं, लेकिन ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं और साथ ही हम लोगों ने अपना काम पर आना शुरू कर दिया है। आज हम यहाँ पे आए हैं काम पे, तो बस अल्लाह का शुक्र है, बस काम थोड़ा बहुत चल रहा है और यह है कि ईद हमने खूब इंजॉय किया। बाज़ारों में कारोबारी सरगर्मियाँ तेजी से बहाल हो रही है, जबकि दफातर में मुलाजिमीन अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। बाज़ शहरियों का कहना है कि ईद की छुट्टियां इतनी जल्दी गुजर गई कि अभी काम में भी दिल नहीं लग रहा है। ताहम चंद रोज में तमाम सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक हो जाएंगी। आज से हमने दुकान खोल ली है और कारोबार के लिए आए हैं। कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन उस तरह का कारोबार फ़िलहाल नहीं है। पीर से फिर सही काम शुरू होगा। ईद अपने अख्तिताम को पहुंच चुकी है, लेकिन रिश्तेदारों की मुलाकातें, कहकहे और खुशियों भरे लम्हात अब भी लोगों की यादों में जिंदा है। हमजा ज़मान, PTV न्यूज़, पेशावर।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। मोहम्मद अवैस खटाना रिपोर्ट करेंगे। आसमान पर काली घटाएं और ठंडी हवाएं, मूसलाधार बारिश, कुदरत ने शदीद गर्मी के सताए शहरियों की दुआएं सुन ली और कई रोज से शदीद गर्मी की लपेट में रहने के बाद सुबह सवेरे बराने रहमत से हर किसी ने सुख का सांस लिया। मूसलाधार बारिश से न सिर्फ जमीन की प्यास बुझ गई बल्कि अवाम के दिलों को भी ताजगी और सुकून बख्शा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों गुलबर्ग, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन और माल रोड पर बारिश रिकॉर्ड की गई। धर्मपुरा, सहाफी कॉलोनी, जेल रोड, कलमा चौक, मुल्तान चुंगी और फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। लाहौर के अलावा गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा और दूसरे शहरों के अक्सर मुकामात पर तेज और हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अहम शाहराहों और मरकजी सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। तमाम मुतलका इदारों ने बारिश के पानी की फौरी निकासी को यकीनी बनाया। वासा की टीमें भी नशेबी इलाकों और गलियों को क्लियर करने के लिए मसरूफ़ अमल रहीं। मोहम्मद अवैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। शहर कायद में आज दिन भर गर्मी रही, तहम दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। हिना असलम रिपोर्ट कर रही हैं। कराची शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है, जिसने शहरियों को बेहाल कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शहर में मौजूदा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब इंतहाई ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में गर्मी की असल वजह हवा में नमी का ज्यादा तनासुब है, जो इस वक्त 61% तक पहुँच चुका है। नमी ज्यादा होने की वजह से पसीना सूख नहीं रहा और हब्स की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई है, इसकी वजह से जो है वो रियल फील्ड टेम्परेचर हाई है। इसी तरह ये सिलसिला जो है वो 5 जून तक रहेगा और फिर स्लाइटली जो है वो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और रियल फील्ड टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आएगी। तिब्बी माहिरीन ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों को हिदायत की है कि वो दोपहर के वक्त बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढाँप कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात का कहना है कि दूसरे जानिब सुबह सिंध के मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने की पेशमगोई की गई है। सिंध के दूसरे शहरों शहीद बेनजीराबाद में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद, सखर, लाड़काना और दीगर शहरों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हिना असलम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, तहम कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब और खित्ता पठवार में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। इस दौरान चंद मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहा, तहम बालाई पंजाब, कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी तुरबत 49, शहीद बेनज़ीराबाद और नौकुंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नर हाउस कराची में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के इश्तराक से 3rd एम्पावर नेशनल गर्ल्स टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद तफसील कतीबा सना की इस रिपोर्ट में। 3rd एम्पावर नेशनल गर्ल्स टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस साल टूर्नामेंट को वुसअत देकर 4 खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ताइक्वांडो और एथलेटिक्स शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर का हमेशा फोकस ये रहा है, शहबाज शरीफ साहब का, कि जब हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करें, क्योंकि जब तक हम अपने मुल्क की ख्वातीन को एम्पावर नहीं करेंगे हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दिला सकते। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नीचे हम 23 गेम्स जो हैं
ان کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے، جن میں سے 29 گیمز میں سے 12 کی سپورٹس اکیڈمیز بن چکی ہوئی ہیں۔ کھیلوں کی سرگرمیوں میں شامل ہونے والی خواتین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے مقابلے مستقبل میں بھی جاری رہنے چاہیے تاکہ لڑکیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے اور آگے بڑھنے کے مزید مواقع میسر آ سکیں۔ پاکستان میں لڑکیوں کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں، لڑکوں کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن لڑکے باہر کھیل سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں فیسلٹی بنانا ضروری ہے اگر ہمیں بچیوں کو اولمپکس لے کے جانا ہے۔ یہ صرف سپورٹس نہیں ہے بلکہ روشن مستقبل کی بنیاد بھی ہے، جہاں گرلز اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر کے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے امپاور وومنس کے لیے، امپاورمنٹ ان کے اندر لانے کے لیے، اور میں خود بھی بینگ اے وومن یہ فیل کرتی ہوں کہ ہماری خواتین بہت پیچھے ہیں جن کو آگے آنا چاہیے۔ اٹس اے گریٹ انیشیٹو، ہم چاہ رہے ہیں کہ پیڈل کو بھی لے کے آئیں کیونکہ ابھی ایک یہ تھوڑا نیو سپورٹ ہے ہمارے ملک میں۔ تقریب میں معروف صحافی اور سماجی کارکن شناز رمزی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ تھرڈ امپاور نیشنل گرلز ٹورنامنٹ صرف ایک کھیلوں کا مقابلہ نہیں بلکہ نوجوان لڑکیوں کے اعتماد، صلاحیتوں اور قیادت کی خصوصیات کو اجاگر کرنے کا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کتیبہ ثنا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان نے انڈر 18 ایشیا کپ کے پہلے میچ میں چین کو شکست دے کر فاتحانہ آغاز کر دیا۔ جاپان کے شہر کاکامیگہارا میں جاری ٹورنامنٹ میں پاکستان نے چین کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3 گول سے ہرا دیا۔ چین کی ٹیم کوئی بھی گول سکور نہ کر سکی۔ پاکستان کی جانب سے پہلا گول پہلے ہاف کے 10ویں منٹ میں عثمان نے، دوسرا 11ویں منٹ میں عدیل نے، جبکہ تیسرا گول 56ویں منٹ میں یاسین نے سکور کیا۔ ایونٹ میں پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل ملائیشیا کے خلاف کھیلے گی، جبکہ تیسرا میچ 3 جون کو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوگا۔ کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف اور ایک بریک لیتے ہیں، جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔